Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I'm back with another session of Let's Crack AIPGT, in which we are going to discuss another lecture of homeopathic pharmacy, which is basically a part 2 of the previous lecture that I have uploaded, and that is pharmacopoeia. ठीक है, pharmacopoeia का ये second part है. In the previous lecture we have discussed German homeopathic pharmacopoeia, British homeopathic pharmacopoeia, and we will be continuing the lecture starting from United States homeopathic pharmacopoeia. ठीक है, ये pharmacopoeia पब्लिश हुई थी 1878 में and it was published by Duncan Brothers. कहाँ पब्लिश हुई थी? It was published in Chicago. Company to the British and American homeopathic pharmacopoeia. Sorry, this was a companion to the British and American homeopathic pharmacopoeia and it was compiled by Lawrence T. Ashell. ठीक है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एडिशन जो है इस फार्माकोपिया का कब आया था? दिस हैज बीन मेंशन्ड रिस्पेक्टिवली एंड दैट इज 1883, 1884 एंड 1890. ठीक है, so this was all about United States homeopathic pharmacopoeia. All you need to remember is the year in which it was published, and that is 1878. Apart from that, the author's name and the place where it was published. You can also remember the names of the subsequent editions. Now, next pharmacopoeia that we are going to discuss is homeopathic pharmacopoeia of USA. ये किसने पब्लिश की थी? इट वॉज पब्लिश बाय ओटिस क्लैप एंड सन. ये फार्माकोपिया जो थी, दिस नेम वॉज गिवन बाय फार्माकोपिया ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड इसका जो सेकेंड एडिशन था, दिस वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1901. सो बेसिकली 1897 में इसका फर्स्ट एडिशन आया एंड 1901 में इसका सेकेंड एडिशन आया था. और सेकेंड एडिशन जब इसका आया तो उसी में इसका नेम जो था वो चेंज हो गया था होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में. मतलब ये जो नाम हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सेकेंड जो एडिशन है उससे वैलिड है. उससे पहले इसका नाम था फार्माकोपिया ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी. ठीक है, थर्ड एडिशन 1914 में आया था. ठीक है, नेक्स्ट एथ एडिशन 1979 में आया था, जिसमें कंपेंडियम ऑफ होमोकोथेरेपिक्स वाज मेंशन्ड. नाउ this is all about the homeopathic pharmacopoeia of USA. Now let's move on and discuss the next pharmacopoeia, and that is American homeopathic pharmacopoeia. American homeopathic pharmacopoeia was published in the year 1882. compiled किसने किया था? Again this is वेरी इंपॉर्टेंट. बोरिक एंड टेफल ने इसको क्या किया था? कंपाइल किया था. इससे पहले डॉक्टर वॉन विल्मार शाबे ने पब्लिश किया था कौन सी फार्माकोपिया को? द फार्माकोपिया ऑफ होम्योपैथिका पॉलीग्लॉटिका, एंड जो थी एक ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ जर्मनी. ठीक है, ये 1882 में पब्लिश हुई थी. 10th एडिशन इसका पब्लिश हुआ था 1928 में. that contained 837 medicines. Now here we have two more pharmacopoeias that have not been differentiated here. मैंने इसको इसी हेडिंग के अंदर डाल दिया, but these both are different pharmacopoeias. और ये क्या है? American homeopathy dispensary, and that was published by Theo D. Williams. ठीक है, नेक्स्ट मैक्सिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया 2007 में पब्लिश हुई थी. और जो ब्राजीलियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया थी, दिस वाज नेम्ड सो इन 2011, दैट इज 2011 में जो मैक्सिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया थी उसका नाम ब्राजीलियन होम्योपैथी फार्माकोपिया उसको चेंज कर दिया गया था. ठीक है, अब now let's move on and discuss the most important pharmacopoeia among the pharmacopoeias that we are studying, and that is the pharmacopoeia of our own country India. ये pharmacopoeia जो है, this was published in the year 1971. You need to keep this in mind. and ये official pharmacopoeia है इंडिया की. इसको जो
पब्लिश किया गया था। ये कमेटी अपॉइंट की गई थी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और इन 1962 इनके चेयरमैन कौन थे? जब ये कमेटी डिसाइड हुई थी तो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर BK सरकार। HPI included second schedule of Drugs and Cosmetic Act in 1940। HPI में जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया है, इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया गया था। कौन से ईयर से? 1940। ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो कि 1940 में आया था, इसको इंक्लूड कर दिया गया था किस चीज में? होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में लेटर ऑन। द चेयरमैन ऑफ द कम्युनिटी हैज द पावर टू फॉर्म सब कमिटी whenever required and to co-opt experts from outside। जो चेयरमैन था उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि अगर उन्हें सब कमिटी बनानी है तो वो बना सकते हैं, को एक्सपर्ट को अगर ऑप्ट करना है बाहर से तो वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मोनोग्राफ्स थे जो भी हर ड्रग्स के इंक्लूड किए गए थे यहाँ पर होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब नेक्स्ट है फार्मास्यूटिक्स मैनुअल। फार्मास्यूटिक्स मैनुअल को स्टडी करने से पहले वी हैव फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। HPI जो है इसके बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं। कितने वॉल्यूम्स हैं? टोटल 10 वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, ये 10 वॉल्यूम्स है और इन 10 वॉल्यूम्स में अलग अलग मोनोग्राफ्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब इसके मोनोग्राफ्स को सबसे पहले आपको ईयर याद करना है। सो ईयर मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ। देयर इज अ टेबल दैट हैज बीन मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक। Here I am only mentioning the monographs जिससे पिछली बार क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट में 180 थे, नेक्स्ट में 100 मेंशन किए गए हैं, उसके बाद 105, देन 107, आफ्टर दैट 114, देन 104, आफ्टर दैट 105, देन 101, 100 एंड अगेन 101। ठीक है, देयर माइट बी कंफ्यूजन इन दीज 3 years because these have been mentioned differently in the 2 of the competitive exams textbook I have mentioned। जो फॉलो किया जाएगा वो आपके जो लिटरेचर है दैट इज मंडल एंड मंडल की फार्मेसी की टेक्स्ट बुक, उसमें से फॉलो किया जाएगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट द फार्मास्यूटिक्स मैनुअल जो कि महेश भट्टाचार्य एंड को ने पब्लिश की थी, ये 1893 में आई थी। ये फार्मास्यूटिक्स मैनुअल इसका पहले नाम था, बाद में इसको महेश भट्टाचार्य एंड को होम्योपैथिक फार्माकोपिया इसका नाम कर दिया गया था। इसकी 10th एडिशन में इसकी 10th एडिशन जो है वो पब्लिश हुई थी 1944 में एंड इसमें 70 इम्पॉर्टेंट इंडियन ड्रग्स जो थे वो मेंशन किए गए थे। 12th एडिशन में जो डॉक्टर M भट्टाचार्य एंड को होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो मैंने आपको अभी बताया कि फार्मास्यूटिक्स मैनुअल का जो नाम चेंज हुआ था वो कौन से एडिशन से हुआ था? सो ये 12th एडिशन से हुआ था। दिस कुड ऑल्सो बी अ prominent question that could be asked from this topic। ठीक है, so friends, this is it about today's session in which we have discussed the second part of the lecture homeopathic pharmacopoeias। I hope I have made you all understand। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। And from today onwards daily I'll be posting one lecture of homeopathic pharmacy in which we will be discussing all the important topics related to AIAPGET। So I'm sure you do not want to miss the upcoming updates, and all you need to do is click on the subscribe button, hit the bell icon, and see you in the next one. Till then, happy learning.